ये लड़के हमेशा बड़ी लड़कियों पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं और आपको सबसे कम उम्र के किस लड़के ने अप्रोच करने की, हेट करने की कोशिश की? 15 साल के। व्हाट्स एज? 63। बड़ी लड़कियों पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं और आपको सबसे कम उम्र के किस लड़के ने अप्रोच करने की, हेट करने की कोशिश की? 15 साल के। डोंट टेल मी। ये कितने साल पुरानी बात है? लास्ट ईयर। व्हाट्स एज? 63। आपसे 4 गुना छोटे लड़के ने आप पे हिट करने की कोशिश की। And in the filthiest language. Okay. And they always say, like when I was younger, I was a bit more polite. अब तो खैर मैं polite नहीं रही. Menopause के बाद you don't remain polite. That's another thing that goes. You're like, हाँ जो मन में आया अब कह सकती हूँ मैं. But there was a time when a younger लड़का आके कहता था and you'd say, sorry, I don't like younger men. I mean, I'm not into younger men. And they all believed, इतना confidence है, अरे try तो कर, नहीं करना try. Get lost. But हाँ, there's a lot of belief कि I know everything. No, you don't. सीधी सीधी बात है, life is such that you learn along the way and you have no idea what excites me. So no, you, like I said, if I ever try and say no, just because I'm saying no, nobody wants to listen. Then they're like, it's like when you say, have a drink. I don't drink. तो मैं कहती हूँ I don't drink. अरे नहीं, try this one. ये वाला तुम्हें बहुत पसंद. I'm 63. I don't like drink. I know. I've never had a drink. Like, I don't like the taste of alcohol. I like a bit of champagne, but not very much. You like this. I've learned when I come here, have a drink. नहीं, आज मेरा fast है. Nobody tells you to have a drink. Sometimes you just have to find the right way of dealing with it. कभी आपका मन भटका? Of course, I'm only human. Of course, bhatka. There are so many people who you meet, like you said, कि जो तुम्हारा partner है, at some point, that relationship goes into a plateau. वो boredom set in हो जाती है. You find somebody else who's giving you attention. They're listening to you. Like, I'm giving, जो भी मैं अपनी जो भी चीज़ डिस्कस कर रही हूँ, कोई और बैठ के इस तरह से enthusiasm से सुन रहा है. That is such an aphrodisiac. भटका, बहुत भटका. But like I said, I am very straight in my head. तो जब आपका अपने पार्टनर से मन भटक रहा हो या आप कहीं और अट्रैक्ट हो रहे हो, कैसे मन को रोकना चाहिए फिर? In my case, like I said, I'm very straight in my head. कि मुझे मालूम है that what I have to lose over here is far more than what I will get over there. It's that simple. और ये क्या है? My family, my security, my sense of belonging, जो भी आप कह लीजिए. I mean, just whatever it is, लड़ाई झगड़े जितने भी हुए हैं मेरे हाफ पंजाबी हाफ सिंधी हस्बैंड के साथ 40 साल के लिए. But we resolve them, right? हम अभी भी इकट्ठे हैं because we want to be. So I may get very fed up with him, but yeah, at the end of the day, I want to be with him. तो आजकल शादियां फिर क्यों नहीं चल रही हैं? आप 40 साल साथ निभा ले गए, आजकल 4 साल भी लोग साथ नहीं निभा पा रहे, और एक बहुत बड़ी आबादी है जो शादी करने ख्याल से डर रही है. इसी रूम में बहुत सारे बैठे हैं. Because अगर मुझे कई चीज़ें तब पता होती, because आप, I may also not have been married. आप भी नहीं करते? शायद. बिल्कुल. Because we weren't taught. You have to remember कि मेरे ज़माने में जिस तरह से a woman was put in her, like, you know, you were told कि अगर कोई आदमी आपको attention, or if he hits on you, you're supposed to take it as a compliment. It's supposed to be flattering. Nobody ever said, stand up and tell him to. Kitni problems, I mean, like the amount of trouble I've got into by yelling and shouting and throwing things because somebody tried to act inappropriate. Yeah, but women were told that this is your place. You have to, I told you, no? Okay, you're not good enough to be put in front of. Also, I have to tell you, growing up,
मेरी मदर जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत. I grew up in a Punjabi household where I was told constantly, तेरी माँ तो इतनी सोहनी है, तेनू क्यों हो गया? So I grew up believing I was really ugly. So I thought, अच्छा ठीक है, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती शक्ल का, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ. I want to be the best at my studies. I want to be intelligent. I want to be successful. I focused a lot on that. You learn. तो पढ़े लिखे लोग अट्रैक्टिव होते हैं पढ़े लिखे लोग बहुत या अट्रैक्टिव. पढ़ी लिखी महिलाएं ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं? दैट डिपेंड्स ऑन द मैन. वो इट डिपेंड्स कि किस तरह से आदमी आपको देखेगा. फॉर नहीं, तो मी ये अ मैन इज वेरी अट्रैक्टिव अगर वो पढ़ा लिखा. ये फैज़ और फराज की किताब पढ़ने वाली लड़कियां अट्रैक्टिव क्यों लगती हैं फिर? क्योंकि भाई अब अक्लमंद आदमियों को अट्रैक्टिव लगती हैं. दैट्स व्हाट इट इज. आई मीन हम लोग फैज़ और फराज पढ़ते हुए बड़े हुए हैं एंड आई लव इट एब्सोल्युटली. हमारा ग्रुप भी है लंदन में. वेयर 9 of us. वंस अ मंथ वी मीट और हम सीखते हैं. सब लड़कियों का ही decide ग्रुप है? हाँ. तो उधर सीखने के लिए तो अपने लड़कियों का ग्रुप होना चाहिए ना. फिर उसके बाद देखते हैं बाहर जाके किसको इम्प्रेस करना. ओके, इसी पे मेरा एक क्वेश्चन था जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि ये फैज़ और फराज की किताब पढ़ने वाली लड़कियां जी. ये अट्रैक्टिव तो लगती हैं, बट मर्दों का एक बड़ा हिस्सा है जो ये मानता है कि वो महिलाएं जो आपको दूर से बहुत आकर्षित करती हैं उनके साथ रहने में बड़ी मुश्किलें होती हैं. या सशक्त महिलाएं, एम्पावर्ड महिलाओं के साथ रहना इतना आसान नहीं होता. बिल्कुल नहीं होता. सच है? बिल्कुल नहीं होता. आई नो, यू नो, सो व्हेन आई वाज यंगर, so there were various men in our friends group, you know, would say, "Arey, what you doing with?" For my husband, like, "What you doing with him? Be with me, be with." And I used to always say कि तुम 2 दिन नहीं जी पाओगे मेरे साथ. I am so opinionated. इतने कॉम्प्लिकेटेड आप? नहीं complicated. I am opinionated. I believe in myself. I believe कि अच्छा मुझे ऐसे करना, ये करना. I'm sorry पर मैं आपकी ईगो के लिए इधर नहीं हूँ. So hence I would also make a terrible partner affair में. Nobody would want to have an affair with me क्योंकि मुझे वो स्पेशल फील कराना नहीं आता in that way. So I think that that's another this thing. I think that Rahul my husband has been very, very strong in the fact कि वो मेरे साथ जी लिया है 40 साल. I have to give him credit for that. I'm not easy. Not because of any other reason. देखो, okay, think ये about आप ही it. नहीं, मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहा हूँ. हाँ, आप मैं जिन सशक्त महिलाओं को आप जानते होंगे, क्या ये उनके साथ भी होता है? Of course, I mean, I have a very good friend जो बहुत, she's very strong-minded, very articulate, very everything. So उसका डिवोर्स हो गया था काफ़ी साल पहले and then there was this very nice guy जिसको ये मिली बाद में. And then finally that broke up because she said that actually, unfortunately, he was impotent. So, like, they couldn't have sex. तो ठीक है, वो टूट गया. Then later on we discovered that he was with somebody else and he could. But the pressure of being with her, नहीं कर पा रहे थे वो. So, you know, I think that it can be quite frightening sometimes. You have to be a real, I don't know, a strong enough man without ego to be with a strong woman. क्या 2 सशक्त लोग बिल्कुल हो सकते हैं. साथ रह इकट्ठे. सकते हैं? हाँ. जानते हो ऐसे लोगों को आप जो दोनों बहुत हाँ, सशक्त हैं, जानती. दोनों बहुत ओपिनियटेड हैं? जैसे मैं जब देखता हूँ, There's a difference between. जैसे आई एम श्योर आपके हस्बैंड आपकी विचारधारा पे क्वेश्चन नहीं करते होंगे, पॉलिटिकल विचारधारा पे. No, we fight. हम खूब लड़ते हैं. मैं Because अक्षय we- कुमार ट्विंकल को देखता हूँ, ट्विंकल खूब टॉन्ट कर देती है, अक्षय शांत हो रहता है. अच्छा नहीं, मेरे हस्बैंड शांत नहीं बैठते, वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं. तो व्हाट बोल- आई एम सेइंग इज कि नहीं, वो बहुत कुछ कह देते हैं. मैं ये कह रही हूँ कि अगर 2 लोगों के ओपिनियन अलग, सो इफ यू आर दैट एम्पावर्ड, you should be able to feel comfortable in your empowerment and know कि अच्छा ये मेरा ओपिनियन है and not how I feel about you. मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं with whom I disagree fully. We don't stop being friends. हम लड़ते, झगड़ते, चीखते. मेरी कॉलेज की जितनी भी ग्रुप है, I have 8 of us जो हम कहाँ से पढ़ाई की थी आपने? LSR. Okay. तो जितने भी हम लोग इकट्ठे, so now we met in 1980. Okay, so we 8 of us, we were best friends then, अभी तक हैं. हम लोग इतनी लड़ाई करते हैं and we have
वेरी डिफरेंट ओपिनियंस हमारे ग्रुप में, फार राइट हैं, फार लेफ्ट हैं, न्यूट्रल हैं, सब कुछ है, लड़ते हैं, वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स। फिर भी एक कॉमन परसेप्शन, लेफ्ट वाले राइट वालों को झेल कम पाते हैं, राइट वाले फिर भी सुन लेते हैं उनकी। अरे छोड़ो अरे छोड़ो, चलो इस पे लड़ाई करेंगे, अगली बार इस पे लड़ाई करेंगे। ये मैं आपके हस्बैंड के लिए छोड़ देता हूँ यहाँ वो संभाल लेंगे। ओके, आपकी किताब स्पीक ईजी, मैंने